Praise the Lord, grace and peace be upon all of you. Welcome to hosting the Ark Day 32. Today we begin following the journey of the Ark of the Covenant, the first important location, which is Mount Sinai, where God revealed himself to Israel. आप सभी पर अनुग्रह और शांति बनी रहे। होस्टिंग दी आग दिन 32 में आपका स्वागत है। आज से हम वाचा के संदूक की यात्रा के विभिन्न स्थानों का अध्ययन आरंभ करेंगे। इस यात्रा का पहला महत्वपूर्ण स्थान है सीनै पर्वत, जहां परमेश्वर ने स्वयं को इज़राइल पर प्रकट किया। In Numbers chapter 10:33 we read that Israel departed from the mountain of the Lord, and the Ark of the Covenant went before them to search out a resting place. So before God led his people into the promised land, he first met them at Mount Sinai. गिनती 10:33 में लिखा है कि इज़राइली यहोवा के पर्वत से चले और वाचा का संदूक उनके आगे आगे चला ताकि उनके लिए विश्राम का स्थान खोजे। प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने से पहले परमेश्वर ने अपने लोगों को सीनै पर्वत पर अपने साथ एक गहरी मुलाकात दी। Mount Sinai holds a very special place in biblical history. After delivering Israel from slavery in Egypt, God brought them to this mountain. Here Moses received the 10 commandments, the law, the pattern of the tabernacle and the instructions of building the Ark of the Covenant. बाइबल के इतिहास में सीनै पर्वत का बहुत विशेष स्थान है। मिस्र की दास्ता से छुड़ाने के बाद परमेश्वर इज़राइल को यही लाए। इसी पर्वत पर मूसा ने 10 आज्ञाएं, व्यवस्था, मिलाप वाले तंबू का नमूना और वाचा के संदूक को बनाने की आज्ञा प्राप्त की। God's purpose at Sinai was not simply to give rules. His desire was to dwell among his people. The law prepared the people. The tabernacle revealed his presence, and the ark became the symbol of his covenant. सीनै पर परमेश्वर का उद्देश्य केवल नियम देना नहीं था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वो अपने लोगों के बीच निवास करे। व्यवस्था ने लोगों को तैयार किया, मिलाप वाले तंबू ने उसकी उपस्थिति को प्रकट किया और वाचा का संदूक उसकी वाचा का प्रतीक बन गया। Every believer also has a personal Mount Sinai. It is the place where we first encounter God's holiness, hear his voice, and surrender our lives to him. Before God sends us into ministry, he first calls us into relationship. हर विश्वासी के जीवन में भी एक सीनै का अनुभव होता है। ये वो समय है जब हम पहली बार परमेश्वर की पवित्रता का अनुभव करते हैं, उसकी आवाज सुनते हैं और अपना जीवन उसे समर्पित करते हैं। परमेश्वर हमें सेवा में भेजने से पहले अपने साथ संबंध बनाना चाहता है। Sinai also teaches us that the law could reveal sin, but could never save us. The law pointed forward to Jesus Christ, who perfectly fulfilled it and established a new covenant through his sacrifice. सीनै हमें ये भी सिखाता है कि व्यवस्था पाप को तो प्रकट कर सकती थी, लेकिन उद्धार नहीं दे सकती थी। व्यवस्था हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर ले जाती है, जिन्होंने उसे पूरा किया और अपने बलिदान के द्वारा नई वाचा स्थापित की। When Israel left Sinai, the ark went before them. This reminds us that the God's presence always leads his people. We are not called to walk ahead of God, but to follow where he leads us. जब इज़राइल सीनै से आगे बढ़ा, तब वाचा का संदूक उनके आगे आगे चला। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा अपने लोगों की अगुवाई करती है। हमें परमेश्वर से आगे नहीं दौड़ना है, बल्कि उसके पीछे पीछे चलना है। Today Jesus Christ goes before us. He prepares the way, guides our decisions, protects us in difficult seasons, and leads us into God's perfect will. So our confidence is not in ourselves, but in his presence. आज भी प्रभु यीशु हमारे आगे आगे चलते हैं। वे हमारे लिए मार्ग तैयार करते हैं, हमारे निर्णयों में हमारी अगुवाई करते हैं, कठिन समय में हमारी रक्षा करते हैं और हमें परमेश्वर की सिद्ध इच्छा तक पहुंचाते हैं। हमारा भरोसा अपनी बुद्धि पर नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति पर है। Hosting the ark begins with an encounter, but it must also continue as a daily work. God desires more than occasional visits. He desires continual fellowship with his people. होस्टिंग दी आग एक मुलाकात से शुरू होती है, लेकिन वही समाप्त नहीं होती। परमेश्वर चाहता है कि हम केवल कभी-कभी उसकी उपस्थिति में न आए, बल्कि प्रतिदिन उसके साथ संगति में जीवन बिताएं। As we continue this journey, may we follow Jesus wherever he leads. Just as the ark searched out a resting place for Israel, Christ prepares the path for everyone who trusts him.
जैसे जैसे हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, आइए हम प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलें। जैसे वाचा का संदूक इज़राइल के लिए विश्राम का स्थान खोजता हुआ आगे चलता था, वैसे आज मसीह अपने लोगों के लिए मार्ग तैयार करता है। Thank you for joining us today. We look forward to seeing you in hosting the Ark Day 33rd as we continue exploring the journey of the Ark through these scriptures. God bless you. आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। होस्टिंग दी आर्क दिन 33 में फिर मिलेंगे, जहां हम वाचा के संदूक की यात्रा के अगले महत्वपूर्ण स्थान का अध्ययन करेंगे। परमेश्वर आपको भरपूर आशीष दे। Amen. आमीन।